Unemployment rate of India is just increased by 8.1%. हम सिर्फ ये सोचे कि हमने एक अच्छी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, हमने एक डिग्री ले ली और हमको जॉब मिल जाएगी. That's where we are also making a mistake. What dilemma Indian education is right now facing? कि हम कितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं एज एंटरप्रेन्योर्स, एज इंडस्ट्रियलिस्ट. Reservation is good for that. टेक इंफॉर्मेशन, डोंट टेक ओपिनियंस और जजमेंट्स. Is AI important for student? Are you getting an on-hand experience? Are you really getting the skill? And how AI helping student? आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है जस्ट बिकॉज आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलेंगे जिसने नीति, कर्म और करुणा को अपना लाइफ लेसन बना लिया. रवि चावचरिया. ही इज ऑल्सो टाइटल एज द सीए फैक्ट्री ऑफ गुजरात. हम और आप कैसे कोई फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे. साथ ही साथ करियर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हमारी फैमिली और खुद के ग्रोथ के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो भी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. As we listen, like so many institute had make a roadmap for each education sector. आज मैं यूपीएससी के एग्जाम की बात कर लूँ, चाहे मेरे को इंजीनियर बनना है, सब लोग ने एक फ्लो चार्ट बना दिया है कि ये कर लो तुम तो पास हो ही जाओगे. So what is the like main result of that? Like आपको इस पे क्या पॉइंट? See, first of all, it may limit your thought process. It may not allow you to explore other options also. Like when we talk about UPSC, people say कि you just take psychology or public administration, go for arts and go for UPSC. And then a student who is doing say chartered accountancy, okay, he doesn't think about UPSC. Whereas हमें पता होना चाहिए कि UPSC में ऑप्शनल सब्जेक्ट में कॉमर्स और अकाउंट्स का भी पेपर होता है. Okay. And that is very rewarding. और एक स्टूडेंट अगर CA कर रहा है तो वो बहुत अच्छे से कर सकता है. Now I am basically from a chartered accountancy background, तो मैंने वो चीज़ पर रिसर्च किया हुआ है. Right. So when a parent asked me कि सर हम CA करें कि UPSC करें, because वो दो अलग-अलग डायरेक्शन. मैंने कहा नहीं. There are so many beautiful combinations you can create in your career, and there are IRS officers, IAS officers who are basically chartered accountants और law graduate और engineering background से भी होते हैं. Okay. So basically you have to explore from your own side. We should not pay money and sell our mind. हाँ. हम पैसा भी दे देते हैं, दिमाग भी दे देते हैं. True. हम खुद में एक्सप्लोर करना चाहते हैं. आई विल स्ट्रांगली एडवाइज, आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है. दे हैव एक्सेसिबिलिटी टू एवरीथिंग. दे हैव जस्ट टू गो टू द राइट ऑथेंटिक वेबसाइट्स, पेजेस एंड get all the information and just have a brainstorming about what you can design for your career. So don't just blindly depend on anyone's so-called framework advice. Because बहुत टाइम पे हमको फील होता है कि नहीं ये ऐसी चीज बता रहा है, so we should go for that. Like 10,000 बच्चे पास. नहीं, एक्सप्लोर करो आप, right? But take information. Don't take opinions or judgments. Cool. Definitely. Collect all the information. Make your own judgments. True. Like mindset of education is becoming dilute. Like nowadays students are dropping their courses in the middle. Like आज कोई किसी का mental health सही नहीं है, किसको financial issue आ रहा है. Reason could be any. But at that point, what would be the best step a student can adopt? First of all, Ronak, I will appreciate that you have taken up this point, because in our society, most of the people are not aware of this fact that students who have got admission to colleges, more than 40 to 50% of the people in general, whether it is BCom or even BTech, they are not completing it and they are dropping it in between. And the data is really very like hard, very tremendous data. Terrible. Okay. So first reason, as you said, mental health, because we don't have that attention span. We are getting too much anxious. Our level of anxiety has raised a lot. Secondly, कि हम लोग चीज़ों में जो एक फ्यूचर को सोचकर हम कोर्स सिलेक्ट नहीं करते. हमने सिर्फ फ्रेंड्स ने कह दिया, फैमिली ने कह दिया, हमने कोर्स सिलेक्ट कर लिया. आफ्टर दैट वी थिंक यार मुझे तो अपनी लाइफ में ये तरह की जिंदगी नहीं जीनी, इस तरह की जिंदगी जीनी है. सो आई विल एडवाइज व्हेनेवर यू सिलेक्ट अ करियर ना, अ कोर्स, सो थिंक अबाउट योर लाइफ, हाउ यू आर गोइंग टू लिव अ लाइफ. Whether you want to stay in this city or other city or out of the country, whether you want to go for corporates jobs or you want to have your own independent practice or you want to start a business. So
any selection of higher education, career education should be completely based on how you want to live your life. And हम जब वो नहीं देखते ना, और हमने बस सिलेक्ट कर लिया, इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लिया, फिर हम सोचते नहीं मुझे इंजीनियरिंग करके जॉब नहीं करनी है, मुझे तो अपना ही कोई बिजनेस करना है, एंड टू ड्रॉप आउट. तो दैट इज basically loss for the country also, because it is losing a seat. Although we are sort of educators, no doubt we are having lots of infrastructure, we have many universities, but जो आत्मा है ना सॉल, ओके, वो टीचर्स वो बहुत लिमिटेड है, राइट? तो उनकी एनर्जी, उनका जो रिसोर्स है वो वेस्ट हो जाता है. सो हमें एज फैमिली, एज सोसाइटी भी अपने जो बच्चे हैं उनको ये एनकरेज करना है कि आप जो भी पिकअप कर रहे हो उसको कंप्लीट करें, मेक अ सेंस ऑफ इट एंड देन एक्सप्लोर आउट ऑफ इट. सो एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली, वी हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. और कोई भी कोर्स का जब सिलेक्शन करने जाते हैं उसके पहले, जैसे मैंने अभी कहा आपको, कि पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, सब इंफॉर्मेशन लीजिए, अपनी लाइफ के बारे में आगे सोचिए, उसके बाद डिसाइड करिए, बिकॉज योर होल करियर इज एट स्टेक एंड मोस्ट ऑफ आवर लाइफ टाइम is spent with our career. Yeah. So we have to be very cautious about selecting the career. True sir. It was very valuable, हाँ. मतलब because बहुत टाइम ऐसा होता है कि मन होता है कि नहीं यार अब कोर्स नहीं हो पा रहा, छोड़ देते हैं, फैमिली का प्रेशर हो रहा है, मेंटल हेल्थ सही नहीं है, बहुत कंफ्यूजन होता है. नहीं, सी आज के टाइम में आई थिंक सो पेरेंट्स हैव टू बी मोर स्मार्ट. पेरेंट्स शुड नॉट बी प्रेशरिंग ऑन द स्टूडेंट्स. इवन एट है ना, our family, we were lucky कि parents were very liberal, very clear. So parents have to be very liberal and they have to allow their kids to move on, right? And people have also to understand that this is the only time when you are giving to your education. Don't get restless to jump into any work and leave your education if that education is making a sense. Okay. क्योंकि कॉलेज ड्रॉप आउट, ओके, बिल गेट्स हो गया कि ये हो गया, तो एक फैशन भी हम सोचने लग जाते हैं, ओके, ट्रेंड बना लेते हैं. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वेदर वी आर एबल टू क्रिएट मोर वैल्यू देन व्हाट आवर एजुकेशन इज गोइंग टू गिव अस बाय लिविंग द एजुकेशन. ट्रू. पढ़ाई छोड़ के क्या हम उतनी वैल्यू क्रिएट करने वाले हैं, या पढ़ाई कंप्लीट कर ले एक बार. वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ ऑलवेज. हां. ओके. देयर इज वन क्वेश्चन, लाइक unemployment rate of India is just increased by 8.1% in this 2024. More than 36% of IITians, 75% of engineers are not getting jobs. If we talk about like state universities also, they are not having a single placements. For like if we talk about campus placement things. So if a normal guy who's coming from the like average family, if he's not getting employment, sir, so देश कहाँ जा रहा है मतलब इस point पे? इसमें एक फैक्टर नहीं है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स वर्किंग टुगेदर. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री, द आउटपुट, द स्पान ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द बिजनेस. वो हमारी पॉपुलेशन जितनी है उसको सपोर्ट करने के लिए आई थिंक सो, जैसे अभी नारायण मूर्ति जी ने कहा था दैट इंडियंस हैव टू वर्क फॉर मोर आवर्स, ओके, एट दिस फेज. I saw that publication, right? yeah. So it was appreciated as well as criticized by many. Now if you compare the working hours of developed countries like the European countries or the American countries, US, और तो आप उससे compare कर रहे हैं, that is not thing. You have to see how China, Japan, okay, before 20 years, 25 years, or the Gulf countries, how they raised, okay, their country. अगर आप उनका उस समय का फेज देखेंगे of 20-25 years, the whole population was rigorously working for their country. तो हमको जब हम स्कोप डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, तभी एम्प्लॉयमेंट होगा. गवर्नमेंट कोई जादू की छड़ी चला के तो एम्प्लॉयमेंट डेवलप नहीं कर देगी. गवर्नमेंट इज नॉट सपोज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, आई थिंक सो, मेरा पर्सनल ओपिनियन. गवर्नमेंट इज सपोज टू एडमिन, ओके, गिव सपोर्ट सिस्टम्स, बट द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन आवर ओनली, आवर्स लाइक शोल्डर, कि हम कितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं एज एंटरप्रेन्योर्स, एज इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट. सेकेंडली, the youth also they have to understand कि if they are joining any university, as you talked about even private universities maybe, so are those universities just giving you degrees? Are you getting an on-hand experience? Are you really getting the skill, or you are just completing any course for the sake of getting a degree? If you are just completing a course for the sake of getting degree without any skill, practical skill, then like if I talk about our chartered accountancy, it has an internship program which is a rigorous program of, it was of 3 years, now it is of 2 years. It really makes everyone employable
and the course structure is so in-depth and practical that 100% chartered accountants are fully recruited. Rather, so many chartered accountants, the freshers are getting offers from more than 10 to 12 companies also. All the companies are selecting them. That's great. Right. And even after that, they can have their own practice. Okay. Or they can their go own firm. or own firm, whatever. So, likewise, as I see in my chartered accountancy or cost accountancy or even some other professional courses, right? Likewise, the engineering, because what you have mentioned, this situation is more in engineering background. Yeah. Right. The reason being कि many people just jump into engineering without having the scientific temperament, research temperament. Science requires your research skill. Science requires patience. Right. Commerce में क्या है? आपने एक बेसिक स्किल डेवलप की और पैसा गिनना छापना चालू कर दो. Right. लेकिन साइंस में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना जरूरी है. And it requires patience. राइट हम सिर्फ ये सोचे कि हमने एक अच्छी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, हमने एक डिग्री ले ली और हमको जॉब मिल जाएगी. दैट्स वेयर वी आर आल्सो मेकिंग अ मिस्टेक. दैट वाज वाओ, बिकॉज इट इज रियली वैल्यूएबल. इफ स्टूडेंट गॉट दिस आंसर ना, उनकी आधी परेशानी तो यही खत्म हो रही है सर. एम्प्लॉयमेंट का इशू ही मेन ये है. ट्रू. एंड या देयर वाज वन मोर क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू यू, व्हिच मोड ऑफ स्टडी इज बेस्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन? Like so many times I ask this question and still I am finding this answer. Just because COVID के बाद ये लोग ने हाइप बना दिए सर कि भाई ऑनलाइन जा रहे हैं, पढ़ाई तो हो रही नहीं है, तुम लोग कुछ भी ब्लॉग्स खोल के बैठे हो, वो लोग पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं अच्छे से. सो व्हाट इज लाइक बैक एंड बिहाइंड दैट कि क्या है, क्लासेस में भी अच्छे से पढ़ाई हो रही है? See, first of all, online is a boon, is a blessing for specific learning. For short-term courses, okay, where you can pay your attention, you are mature enough, you want to develop a specific add-on skill. But when you want to go through a complete course, a program, then the face-to-face education enables you to be regular, enables you to be attentive, enables you to grasp the things, because हम चीजें सिर्फ सुनकर ध्यान नहीं रखते, जो eye to eye contact होता है और एक personal presence होता है, that helps you a lot to grasp the things. True. आज हम इंस्टा पे रील्स जो रोटेट करते हैं, हमको लगता है कितना कुछ जान रहे, बट जस्ट थिंक एट द एंड ऑफ द डे हाउ मच यू आर एबल टू रिटेन इट. अराउंड मॉर्निंग तक भी नहीं याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता. हाँ. पर उसकी जगह मैं आपको कहूँ, उन रील्स समझो आपने 20-25 रील्स तो ऐसे देख लाते हैं, एक बार तो 100 रील्स निकाल देते हैं. अगर हम उनमें से सिर्फ 2 रील्स में जो लोकेशन है और जो इंसिडेंट हुआ है, अगर मैं वहां पर्सनली प्रेजेंट हूं और वो लोकेशन, वो इंसिडेंट को मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा हूं, इट विल बी एच्ड इन माय माइंड फॉर लाइफ टाइम. ओके. सो पर्सनल प्रेजेंस, आवर ओन इन्वॉल्वमेंट will help us to evolve. I always say involve to evolve. Right. That's like slogan. हाँ, my tagline. Right. So हम सोचते कि हमने बस देख लिया, सुन लिया, तो हमने पढ़ लिया. गलत. पढ़ाई के लिए जो पर्सनल प्रेजेंस है फॉर लॉन्ग टर्म कोर्सेज, वेदर इट इज मेडिकल और इंजीनियरिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंसी, राइट, वहां पर फेस टू फेस एजुकेशन आपको बनाता है वो चीज. ऑनलाइन एजुकेशन आपको सिर्फ बताता है. Oh. Yeah, that's deep. So got it. Yeah. So online आपको बता रहा है specific learning short term course for add-on skill. बट आपको कोई चीज बनना है, तो you have to be there. True. Crazy answer it was, huh? Okay. As being a student, I always get confused, sir. Like if I want to become an engineer, I have multiple resources of like study material. I have so many publications, I have so many articles. But sir, किसको लेके बैठूं? पॉइंट ये है, 4 से 5 पब्लिकेशन दे रखी है, कंफ्यूज्ड हूं सर. व्हाट इज योर लाइक आंसर बिहाइंड दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, समझदार को इशारा ही काफी होता है. सो आई विल एडवाइज लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू एज अ स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी. At our time, our ICI book were having the topics, but the resources were limited, and we had to explore other reference books. So, as you said, we had multiple books. I personally used to pick up 3 to 4 books on every subject, and then used to read a topic from one book, immediately on the other, 3rd, 4th book, and then I used to make my own notes, or I used to shortlist that these topics are very comfortable and well written in this book. This book is not so good in these topics, but on other topic this material is very good. So अगर आप एक कंटेंट को 2 या 3 बुक से पढ़ते हैं, तो आपका एक रेपुटेशन भी होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आती है,
क्लैरिटी भी आती है। बट एक बार पढ़ने के लिए फॉर द फाइनल एंड रिविजन्स you should be finalizing your content from one book or from one content from one book, other content maybe from other book or from your notes, but I as a person used to play along my books. Okay. वैसे मैं मानता हूँ most of the people will not agree with my answer, they will say सर एक book बता दो उसमें से पूरा पढ़ लिया। एट द एंड ऑफ द डे नोट्स आर इंपॉर्टेंट। हम जो जितने भी पब्लिकेशन से ले रहे हैं नोट्स डाउन करें, नोट्स अपने बनाए। इसमें भी आजकल के स्टूडेंट्स होते हैं रेडीमेड नोट्स उठा लो किसी के। अच्छा, इसमें भी ले रहे हैं लोग। हाँ, हैंड रिटन नोट्स उठा लो। ओके, अगर आज आप देखेंगे तो आपको टेलीग्राम पे या सोशल साइट्स पे और काफी सारे पेजेस पे आपको रेडीमेड नोट्स के लिंक्स मिल जाएंगे कि यहाँ से इसके नोट्स उठा लो, उसके नोट्स उठा लो। इज दैट प्रॉफिटेबल? हाँ, प्रॉफिटेबल फॉर द पीपल हु आर पब्लिशिंग इट। ट्रू। स्टूडेंट्स के लिए आई टोटली डिसएग्री विद दैट। ओके, जब आप कोई चीज को खुद लिखते हैं वो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में छप जाता है, आप वो बन जाते हो। अगर आप उठा रहे हैं तो आप शैलो लर्निंग कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। दैट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ मार्क्स, राइट? बट आई विल एडवाइज यू रीड फ्रॉम 2 to 3 बुक्स, मेक योर ओन नोट्स और फाइनलाइज वन कंटेंट फ्रॉम वन बुक, राइट? और फिर उसी को स्टिक करें। ओके, वंडरफुल आंसर। Okay, in India, so many people like having a degree of their particular respective of their niche education, ठीक है? But at the end of the day, after 10 years, when we ask someone, भाई तूने तो इंजीनियरिंग की थी, आज तो टेक्सटाइल में कैसे बैठ गया यार? मतलब कोई हार्डवेयर की शॉप में बैठा है, बंदे ने डिग्री इंजीनियरिंग की है सर, उसका पैशन था, 4 साल तक उसने किया है, बट एट द एंड कोई एक ऐसी सिचुएशन आई, पता नहीं अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है या तो कोई पॉइंट ऐसा, तो लोग अपना करियर क्यों बदल रहे हैं सर इस वे में? मतलब सी रौनक, ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है, कोई एक्सेप्शनली बदलता है तो ठीक है, बट वी आर लुकिंग दैट ये ट्रेंड बनने लग गया है अब, राइट? तो यहाँ पे वही गलती हो रही है कि हमने जब वो एजुकेशन लाइन को सिलेक्ट करने का डिसाइड किया तो शायद हमारा सिलेक्शन इस बेस पर था कि किस कोर्स की ज्यादा है ना वो है मार्केट में, नॉट इन टर्म्स ऑफ करियर बट इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी में किसकी ज्यादा, मेरा बेटा IIT में पढ़ता है, रुतबा है। ओके, तो वहां पर हमने अपने एजुकेशन को, अपने घमंड को पूरा करने के लिए यूज करने की कोशिश की। मेरा बेटा इस कॉलेज में पढ़ता है, उस कॉलेज में पढ़ता है, बट उस कॉलेज में जो सीख कर निकलेगा, क्या वो आगे अपनी लाइफ में काम करने वाला है उस चीज के लिए? सो मेक श्योर कि आपने जो अपनी लाइफ के कीमती 4-5 साल निकाले आफ्टर स्कूल एजुकेशन, वो एजुकेशन का आप यूज करें लाइफ में। That's important, yeah. राइट, इसीलिए अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपने पर्सनल इंटरेस्ट और अपने सराउंडिंग्स, जो हमारी सोसाइटी, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे बिजनेसेस हैं, उनमें हम कहाँ बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं, उसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट भी काउंट करता है और हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ हद तक काउंट करता है, टू बी वेरी प्रैक्टिकल। और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम कोर्स सिलेक्ट करते हैं विच कैन हेल्पफुल बी, लाइक अगर मुझे बिजनेस में जाना तो बिजनेस में मेरे हेल्पफुल हो सके, बिजनेस में नहीं जाना मुझे अपना स्टार्टअप करना तो उसमें हेल्पफुल हो सके, और अगर मेरा रिसर्च माइंडसेट है तो उसमें हेल्पफुल हो सके। और अगर हम वही वापस गलती करते हैं कि हम पेशेंस नहीं रखते और इमीडिएटली फैमिली बिजनेस में जंप कर लेते हैं, तो जहां तक हो सके कि हमने जो 4-5 साल जिस पढ़ाई में निकाला है, हम उस पढ़ाई में ही अगर आगे डेवलप करें, या हम आगे जिसमें डेवलप करने वाले हैं उसी में पढ़ाई करें। हाँ, ट्रू। तो हमारी जनरेशन बहुत ही सेटिस्फाइड फील करेगी और एजुकेशन की वैल्यू को भी समझेगी, बिकॉज यू कैन रिलेट इट। देन ये तो बोलते हैं मुकेश नॉलेज से कोई प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं, ऐसा बोलेंगे, बिकॉज उन्होंने कभी प्रैक्टिकल लाइफ के बेस पर बुक्स को सिलेक्ट ही नहीं किया, ना बुक्स के बेस पर अपने करियर को सिलेक्ट किया। ट्रू ट्रू ट्रू, या okay, satisfied with this answer, of course. Okay, reservation is good or bad? Like if I take example, JEE में 12 lakh people are appearing in 2023. उसमें से if एक बंदे के 96 परसेंटाइल आए हैं सर, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बट फ्रॉम द अदर कास्ट इफ इज गेटिंग 61%, उसको एडमिशन मिल गया है। सो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? मतलब स्टूडेंट अंदर से टूट जाता है सर, जब उसने इतनी मेहनत की है दिन रात, उसका तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बट एक जो रिजर्वेशन का कोटा है ना कहीं आके चुपता है किसी को, और बहुत सारे एलिगेशंस भी हुए इंडिया में इस चीज़ के लिए। सो लाइक व्हाट इज योर थिंग? इसमें मेरा ओपिनियन है कि गवर्नमेंट अगर वोट बैंक के हिसाब से अगर फेवर करने के लिए अनड्यू रिजर्वेशन का स्कोप और बढ़ा रही है
तो वो थोड़ा सा चिंता का विषय है, बिकॉज ऑब्वियसली उससे जो टैलेंट है कई बार उसको स्कोप नहीं मिलता है। रिजर्वेशन कुछ हद तक कुछ सेक्टर के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस तो बहुत ज़रूरी था टू मेक द सोसाइटी कमिंग ऑन इक्वल फुटिंग, बिकॉज ऑफ द जो सिचुएशन उन कई है ना कास्ट कम्युनिटीज़ की थी जिन्हें बहुत ही ज़्यादा डिप्रिवेशन दिखना पड़ा था। तो रिजर्वेशन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था तो उस समय के सिचुएशन के हिसाब से बिफोर 75 ईयर्स 78 ईयर्स वो आई थिंक इट वॉज kept with a well thought out process. But over this years, after so many decades, अब उसका बेस बदलना चाहिए। जैसे अभी EWS जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, उनको रिजर्वेशन नहीं पर मैं मानता हूं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, टैलेंट के बेस पर सिलेक्शन हो और फाइनेंशियली कहीं पे किसी को कॉन्स्ट्रेंट ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए उनके लिए आप स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट रखिए या उनके लिए स्पेशल सीट्स रखिए, राइट। लेकिन नो डाउट रिजर्वेशन एक हद तक सही है, उसका जो एक्सट्रीम डोज हो रहा है हाँ। वो बहुत अनजस्ट हो जाता है उन लोगों के लिए जो लोग रियली डिजर्व करते हैं। स्टूडेंट्स आर थिंकिंग लाइक पार्शियलिटी हो रही है, हाँ। ये सब है। हाँ। कूल सर, एज वी आर सीइंग राइट नाउ, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवरीवेयर, उसने बहुत सारे लोगों की जॉब खा ली है। कंटेंट राइटर बैठे हैं, चैट जीपीटी कर लिया, हो गया। बट इज एआई इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट एंड हाउ एआई हेल्पिंग स्टूडेंट? सी वी कैनॉट रन अवे फ्रॉम द फैक्ट्स। एआई डेवलप हो रहा है और डेवलप होता ही रहेगा, ठीक है, एंड इट विल श्योरली रिप्लेस many people's job, but at the same time it will also help you to gear up leverage, right? जहाँ पे आप एज अ सी है ना 10 जन का काम कर सकते थे, विद द हेल्प ऑफ एआई आप 100 जन का काम कर सकते हैं। इवॉल्व हो रहे हैं आप अगर एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं और आप चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन कवर अप मोर असाइनमेंट्स, यू कैन कवर अप मोर जॉब, राइट, यू कैन टेक अप मोर टास्क। नो डाउट इट विल हैव वेरी अनसर्टन, अभी जो आगे फ्यूचर होगा ओके इसमें काफ़ी चीज़ें उथल पुथल होगी, लेकिन चीज़ें खत्म नहीं हो जाएगी। आपको ये चीज़ है कि यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ वर्किंग, रोल, पर्सपेक्टिव। और आपने जो कहा कि एक स्टूडेंट एआई को कैसे यूज़ कर सकता है, तो जैसे कि हम आज कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, वैसे हम एआई को स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन और वही चीज़ है कि आप उसको यूज़ किस तरह से करते हो। अगर आप उसको उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो या आप उसको एज अ टूल यूज़ कर रहे हो। ओके, सो इट शुड बी यूज एज अ मीन्स, नॉट एज द एंड कि बस हो गया खत्म, एआई को यूज़ कर लिया तो, राइट। एआई को भी तो ड्राइव करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए जो उसको ड्राइव करेगा। रिसेंटली आई सॉ इन न्यूज़ पेपर कि भाई एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब ले रहे हैं। सिंपली लिख दो हाउ टू मेक एप्लीकेशन और वो सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, एप्लीकेशन बना के दे रहा है। आई वाज लाइक कि मैं क्यों सीख रहा था, मैं 4 साल से कोडिंग सीख रहा हूँ। सो लाइक लेजिट ये चीज़ हमको मतलब ड्राइव कर रही है कि नहीं, मतलब हमारी जॉब कम हो रही है? मतलब आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे कि नहीं एट द एंड मतलब ह्यूमन की वैल्यू रहेगी कि एआई की वैल्यू है? इसका सिंपल मैंने आपको यही कहा कि ह्यूमन की वैल्यू रहेगी, पर उसी ह्यूमन की वैल्यू रहेगी जो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट होना, ओके, और एआई को यूज करना समझेगा, जानेगा, और वो ऐसे रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे आएगा जहाँ पे वो अपने से चीज़ों को ड्राइव कर सकता है। मतलब कि वो एआई को यूज करके जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके लिए वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकता है। सो ह्यूमन रोल तो रहेगा, लेकिन क्लरिकल रोल जो हम सोचते हैं बस जॉब ज्वाइन कर लिए, बैठ जाओ, क्लरिकल वर्क कर लो, सब आउटडेटेड हो जाएगा। ट्रू, ओके। So today's generation is just for going for the fast money thing. How to make money in 1 hour, how to make $1, $10, $50 in just an hour. So is the fast money is like key for the success, or you should be like having a passive kind of growth in the career? It depends in which phase of career you are. Okay. If you are a very settled person and you are mature, fast money is the best one. Okay, clear, time का ज़्यादा, ठीक है, retire early. But if you are on the start of your phase, you are having not that much exposure, then you should first understand all the situations, right? That sometimes fast money may be dangerous. You may not, you may end up with losing the money also. You may end up with some unethical thing also. So
unless until you are very much matured, you should again have some proper research, proper studies, and then अगर आप चारों तरफ से secured and if you are thinking you can play safe, right, play well. Yeah, commendable, nice one. Okay, what changes do you see in the education sector which are coming in, मतलब फ्यूचर के 10-12 साल में क्या बेस्ट होने वाला है एजुकेशन सेक्टर में? देखिए, एजुकेशन सेक्टर में एक ऑनलाइन का एडिशन होना, ठीक है, एआई का यूज होना, राइट, मल्टीपल कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना, राइट, स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन के साथ साथ दे आर आल्सो ट्राइंग टू ऐड ऑन फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कि मैं ये भी चीज सीखूं, मैं ये भी चीज सीखूं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज की भी वैल्यू बढ़ना, राइट. तो बट द फंडामेंटल्स विल नेवर चेंज. मैं हमेशा कहता हूँ फंडामेंटल्स वही रहेंगे, लेकिन जो उसके प्रोसेस है, जो तरीके हैं, वो बदलेंगे. ओके, नाइस वन, नाइस वन. ओके, लास्ट क्वेश्चन. What tips do you have for new educators who are coming in this field and want to give value to the students? आपने अपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया कि give value to the students. If the educators have a very clear vision कि I can give value to the brains, मैं उनको जो सिखाऊंगा वो बहुत खास होगा, वो सिर्फ बुक की पढ़ाई नहीं होगी और बुक की पढ़ाई को कैसे पढ़ना है वो सिखाऊंगा. Right? If they are really passionate about, then money is a byproduct. But if they are coming up कि यार एजुकेशन बहुत पैसा है, चलो इतना छाप लेंगे, इतना छाप लेंगे, अगर वो सोच रहे हैं कि यार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इतना पैसा आ जाएगा, you'll be out. And it is true in every business. You take the example of say आज हमारे सिटी सूरत में इतने वंडरफुल कैफेज खुल रहे हैं, कुछ बंद भी हो जाते हैं, ओके, कई बंद हो जाते हैं और कई अच्छे चलने लग जाते हैं. तो if you see those cafe where the owners are really passionate about cooking and they have really very good idea about food, right, they are continuing well. But where a person thinks चल मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, एक कैफे चालू कर दूंगा, किसी है ना शेफ को रख दूंगा, किसी है ना कॉफी और सब सेटअप कर दूंगा और चल जाएगा. सॉरी, नहीं चल पाता, लॉस हो जाएगा. मतलब आप कितनी भी मार्केटिंग कर लीजिए, आप कितना भी पैसा सेटअप कर लीजिए, unless until you are completely into that line. जैसे when I like never started teaching, my juniors came up कि we want to study under you because they have seen my research, my involvement in my studies. So I was very clear कि I can give wonderful thing. When I cleared my CA, I was having so many offers from companies, but कंपनी से जो पैसा था वो ज्यादा आने वाला था उस समय. Okay. स्टूडेंट्स उस समय CA के बहुत कम थे. तो अगर मैं मॉनिटरी टर्म में देखूं तो only a stupid will go for education at that time when I started teaching. According to you, sir, currently what dilemma Indian education is right now facing? If you have seen the movie Rocketry, okay, जिसमें आर माधवन ने रोल प्ले किया था एक साइंटिस्ट का. In that movie, the scientist, okay, जो नाम्बी करके इफेक्ट था, he went to other countries seeking some professors, seeking some mentors कि I want to learn this technology from this particular guy. And that guy had left teaching, but still he went to his home and he convinced him to guide, to be his mentor. What problem we are facing, that our parents and students are running behind institutions, behind the results, not behind the educators or mentors. We are not looking कि हम किसके अंदर गाइडेंस ले रहे हैं. And secondly, our society, our government should understand the importance of teachers. हमारे संस्कृति में वेद काल से तब से गुरु की महिमा, ओके, राजगुरु, ओके, ना जो मुनि होते थे, ऋषि होते थे, उनकी इंपॉर्टेंस रहती थी. और आज भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे प्रोफेसर्स, ओके, मेंटर्स की इंपॉर्टेंस रहती है. बट अभी हमने टीचिंग को सिर्फ समझ लिया है कि एक बार हम कहीं जॉब ज्वाइन कर ले या कमा ले. अगर हम समझे तो टीचिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आ रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट्स में पूरी रिसर्च करके आए, because we are really making an impact on the whole future of the country. True. Secondly, parents and students should also give importance to the one under whom they are learning and not just any institution, schools, colleges or classes. The brand, the name, the understanding, the value और जो आत्मा है पूरे एजुकेशन सिस्टम की, the soul is the brain of the person who is teaching you. Nothing else. Everything else is only more Maya.
Crazy. all infrastructure, all and like name, fame, all marketing, okay, all everything is Maya. Okay, the only thing is the brain of the people who are guiding you. Yeah. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसकी इंपॉर्टेंस हमको बढ़ानी है. अगर हमारे देश में केपेबल, स्ट्रॉन्ग, नॉट ओनली टीचर्स, मैं नहीं कह रहा कि टीचर्स कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन में कैटेगरी है. एवरी प्रोफेशनल कैन बी अ टीचर. लाइक यू सा होता है यार. अगर आज आप एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग और आप एक वेबसाइट डेवलपमेंट में आप एक्सपर्ट है, तो आप भी तो 10 जनों को ट्रेन कर सकते हैं. कोई जरूरी है कि किसी ने कोई पर्टिकुलर डिग्री ली वही ट्रेन कर सकता है. तो इफ वी अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी मोर ब्रेन्स वी कैन डेवलप, देयर इज अ ट्रू डेवलपमेंट, okay, which we can make for our country, we can contribute as citizens of our country, because development of a nation is nothing but the development of the people of the nation. When you develop the people of the nation is developed. So we as a citizen should strive to make the people around us educated, learned, becoming more smart, Yeah. guiding them, helping them. It's our responsibility. Yes. Yeah. We have to play the role of being the guide, being the navigator in every aspect of our life. When you started teaching. बहुत कम बच्चे थे सूरत में. Okay. राइट, और उसके सामने कॉर्पोरेट से बहुत अच्छे ऑफर्स थे. लाइक आज यूपीएससी के लिए सूरत में बहुत कम बच्चे हैं, Okay. पर यूपीएससी का करियर बहुत स्ट्रांग है. लेकिन अगर कोई एक यूपीएससी वाले को लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ ऐसा है जो मैं देकर स्टूडेंट्स का पूरा करियर बदल सकता हूँ, वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, जो आपने कहा, देन गो फॉर इट. ओके, उसके लिए आपको और कोई प्रिपरेशन की, कोई स्ट्रेटेजी की, कोई मार्केटिंग की, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है. That was a wonderful answer to end this podcast. Yeah. Thank you so much. थैंक यू.